जस्टिस विनीत कोठारी ने भी ज्वाइन किया। ग्रेट सर। हाँ, जस्टिस कोठारी, गुड इवनिंग सर। ही इज द फॉर्मर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात। हमारे चैनल पे कई बार आए हैं। Great. It's an honor to be that I've been watched by him. बहुत अच्छे नॉलेज भी है और बहुत अच्छा ज्ञान भी है। Yeah. So good evening, friends. As promised by all of us, that the team of Beyond Law CLC and Mr. Manoj Anand, a chartered accountant and IP specialist, will come with the part 2 of individual insolvency part 2, and we will discuss about the basic concepts, procedures, and latest developments in the IBC 2016. We all know the immense knowledge which Mr. Manoj Anand had shared on the previous date of hearing. I'm sorry, its date of hearing is such a normal terminology which goes automatically on while you're speaking. The session was well received, and therefore we requested, rather than waiting for a long time, that Mr. Manoj should share his knowledge. मनोज जी का जैसे हम जानते हैं कि जिन्होंने इतनी प्यार से और सलीके तरीके से अपने ये सारे हमें ज्ञान समझाए, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, बेसिक कंसेप्ट्स, प्रोसीजर्स एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, उसके कारण पार्ट 2 जो सोच रहे थे कि शायद थोड़ी देर बाद रखेंगे, हमारे को व्हाट्सएप पे काफी मैसेजेस आए कि भाई ये सेशन जल्दी कर दें, सो दैट द लिंक इज कनेक्टिविटी देयर इज देयर, जस्ट लाइक सीरियल्स व्हाट वी से, आज तक और अभी तक और उसके बाद अब तक और उसके बाद आगे क्या है। तो आज ये सारा नॉलेज शेयर करेंगे। जैसा पहले हमने बोला, जस्टिस विनीत कोठारी, a senior advocate in Supreme Court of India who has been recently designated. He is also a chartered accountant and a former acting chief justice of Gujarat High Court, and similarly he was the judge in Rajasthan, Karnataka, and Madras. We welcome him, and we will take his insights also by the end of the session. I will just ask him to unmute himself, Justice Vineet Kothari, before we take the session forward. I think he is logged out. Yeah, he was trying to get himself unmuted. He couldn't get it. Over to you, Manoj ji. Vikas ji, thank you very much. I think hopefully Mr. Vineet Kothari will be joining us very soon. By face, I've been able to recognize Mr. R.K. Gupta also as lead counsel also. Either I don't know how I've been able to recognize. Are you both of you are IP also? Yes, Sumit is IP and Mr. R.K. Gupta. Sir, मैंने आपको कहाँ देखा? I'm not able to recollect, but I remember seeing your face. I might have seen you somewhere. Mukesh Jain ji, you are also welcome. So I start my deliberation with the permission of Mr. Vikas. Sir, Haji Vikas ji, इजाजत है आपकी? Start करें? Okay, great. This is my small, introduction. हमने जो मैं थोड़ा सा रिसाइकल कर लेता हूँ, हमने अप्रोक्सीमेटली मनोज जी 1 मिनट लूंगा मैं। हम किसी को अनम्यूट बीच में नहीं करते क्योंकि सेशन चल रहा होता है, बाद में अल्टीमेटली लोग यूट्यूब पे देखते होते हैं, तो हम कंटिन्यूअसली चलते होते हैं। वी वेलकम एवरीवन, वी वेलकम एवरी पार्टिसिपेंट, वी कैन टेक them at the end. Sumit has been a regular follower of Beyond Law CLC for last 2 years and he knows this pattern very well. Over to you, Manoj. Okay, thank you very much. तो हमने जो हमारा लास्ट वीक में हुआ था, तो उसके अंदर हमने 18 स्लाइड्स ली थी। तो 18 स्लाइड्स के अंदर बेसिकली जो हमने आई जस्ट 2 मिनट लूंगा उस चीज को बताने के लिए। मैंने ये डिस्कस किया था कि ये हमारा जो प्रेसिडेंसी लॉ है, जो इंसॉल्वेंसी लॉ है, ये कब था, कैसे था और इसके एसेंशियल फीचर्स क्या थे। आई एम जस्ट पासिंग, और यानी कि including we discussed a little bit of SARFAESI also, ESIRD also, MSME Samadhan also. These are all recovery tools. But the main topic was of IBC, and IBC के अंदर हम लोगों ने कहा था कि ये कब किस डेट से कब एप्लीकेबल हुआ। सेक्शन 2 को हमने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी थी। उसके बाद कुछ ये क्या कहते हैं, जो प्रोविजंस थे, जो पावर्स देते हैं रूल्स की बनाने की, रेगुलेशन बनाने की IBBI को या MCA को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको हमने आपस में डिस्कस करा था। और
उसके बाद ये लॉ कितना इफेक्टिव है कि इस लॉ दिसंबर में ही आया था, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर अगो। उसके बाद उसके ऊपर ललित कुमार जैन के केस में स्टे मिल गया था, तो इस करके बट डिस्पाइट ऑल दिस थिंग कि जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं वो अफेक्टेड विद दिस लॉ, उनके मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी थी। अगर हम इनकी टोटल स्केल करें तो इट विल रन इनटू फ्यू lakhs ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज। देन आई डिस्कस कि हमारी ये अंडर व्हाट प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस ये एप्लीकेशन या इस लॉ को वी कैन यूज फॉर आवरसेल्फ। I discussed this Lalit Kumar Jain judgment also, and Gurveer Sodhi judgment also, and इसको हम presently कैसे यूज कर सकते हैं, I discussed this also. हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर दिए थे कि जब हम एप्लीकेशन फाइल करें तो हमारे को क्या करना है, या जो हम लोगों को प्रैक्टिकली एप्लीकेशन फाइल करते समय जो नई नई चीजें डिस्कस दिखते आई, या जो मैंने काफी, यानी कि मैं पर्सनल कंट्रैक्ट के ऊपर कम से कम 25-30 सेमिनार ले लिए होंगे मैंने। तो इस समय जो भी मेरी डिस्कशन होती थी, इसमें जो अच्छे ऐसे इश्यूज मर्ज होके हुआ कि जो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद माय ऑडियंस, तो उनको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया था। तो और दैट वी आल्सो डिस्कस्ड। या अब हम चलते हैं, यानी कि लेट्स, जैसे कि अब इनिशियली हमने सीख लिया कि ये लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, किस किस सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। अब सिंस वी आर एन एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो वी नीड टू प्लान फॉर हिज अफेयर्स। या इनफैक्ट इस इंसॉल्वेंसी लॉ का हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट बेनिफिट कैसे ले पाए फॉर पर्सनल कंट्रेस्ट, तो उसके लिए जो हमारे को हमने जो प्रैक्टिकली एनालाइज करा, तो उस चीज को मैं आपके शेयर करूंगा कि व्हाट प्लानिंग वी नीड टू डू बिफोर इधर अपोजिंग आवर एप्लीकेशन if filed against us, or if we are if we feel that our clients are there जिनके अगेंस्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने फाइल करनी है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक्शन 94 के अंदर वी शैल फाइल द एप्लीकेशन, सेक्शन 95 के अंदर जो है क्रेडिटर विल फाइल द एप्लीकेशन। तो इसमें सो दैट लेट्स प्रिज्यूम कि इधर एप्लीकेशन इज फाइल्ड अगेंस्ट अस और वी आर फाइलिंग एप्लीकेशन, तो इसमें जो प्लानिंग एक्सपेक्ट है ये हमारा काफी टाइम पहले से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें तो मैक्सिमम केसेस पर्सनल कंट्रोल्स के वही आ रहे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी क्रिप स्टार्ट हो रखा है। तो वी नीड टू प्लान समथिंग फॉर द क्रिप आल्सो। जब क्रिप मीन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसके बारे में डिटेल में आई थिंक माय सिस्टर ममता बनानी जी ने बताया था आपको। तो इसमें अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये पॉइंट्स जब भी आपका क्रिप चल रहा हो और आपको आपका क्लाइंट है पर्सनल कंट्रोल योर क्लाइंट इज डायरेक्टर, तो आप हमेशा उस क्रिप के अंदर रेज एंड रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट सजेशन प्लान, saying this thing that it is going very cheap. I shall give you the logic for that also, how it will benefit to you. If possible, get release personal control by giving extra benefit in registration plan by PRA. मीनिंग देयर बाय कि अगर पीआरए जैसे एमएसएमई का केस में तो प्रमोटर्स को भी परमिशन होता है, तो अगर आप ही यानी कि आप ही के पीआरए है, पीआरए मीन प्रोस्पेक्टिव रेजिडेंट एप्लीकेंट, जो कि उस कंपनी को बाय कर रहा है, तो ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर पर्सनल लायबिलिटी बाय मेकिंग सम एक्स्ट्रा पेमेंट इन द रजिस्ट्रेशन प्लान इन द क्रिप। एमएसएमई का मैंने बता दिया आपको। चौथा मेरा पॉइंट ये है कि रेज ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ओसी क्लेम एज कैलकुलेटेड बाय द आरपी। देखिए, जो आपका क्लेम होगा, जो आपकी लायबिलिटी होगी, वो लायबिलिटी आपकी अल्टीमेटली उतनी ही आएगी जो कंपनी ने पैसे देने हैं, माइनस जो उसका रजिस्ट्रेशन प्लान के अंदर रिकवर हो गया। अब रजिस्ट्रेशन प्लान के अंदर जो उसको रिकवर हो गया, जो एफसी को, जो ओसी को जो मिल गया, तो एफसी ओसी की जो राइट बनता है एक पर्टिकुलर क्रिप के अंदर लेने का, तो वो अपने क्लेम के थ्रू फाइल करता है। तो क्लेम अमाउंट जो होता है ना, ये इसके ऊपर भी बहुत सारी, यानी कि एज एन आरपी वी आई हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि मैं कितना अमाउंट उसका एक्सेप्ट करूं। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के केस में अगर सपोज कर लो उसका अकाउंट एनपीए हो गया, द मोमेंट हिज अकाउंट बिकम एनपीए,
he start charging his interest in the bank doesn't charge interest in his books of accounts. वो एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, उसके अंदर उस इंटरेस्ट को वो डालते हैं। तो जब वो मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो मैं ऑलवेज टेक ए प्ली कि भैया जब तुम अपनी बुक्स के अंदर ही उस प्रॉफिट को नहीं दिखा रहे तो व्हाई शुड आई बी लायबल टू पे यू। सिमिलरली ओसी के केसों में मैनी अटेम्प्ट होता है कि जैसे उसने इनवॉइस रेज करी, उसमें उसने लिखा हुआ है इनवॉइस के नीचे कि अगर आप मेरे को एक पर्टिकुलर डेट तक पेमेंट नहीं करोगे तो वी शैल चार्ज इंटरेस्ट अगेंस्ट दैट। तो जब भी ओसी का क्लेम आता है तो वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑल दिस इज कम आउट टू बी देयर। तो आरपी एज पर लॉ यूजिंग अ डिस्क्रिप्शन तो वो उस क्लेम को सेटिस्फाई करता है। तो एज ए प्रमोटर बिकॉज डायरेक्टर्स भी हर सीओसी मीटिंग के अंदर आते हैं as an invitee, although they don't have any voting right. You whenever this जो भी ये claim list होती है ये आरपी प्रैक्टिकली उसको बना के सीओसी के सामने रखता है। You as a director always raise some objection against it. चलिए अब ये तो किसी को पता नहीं था कि ये इंसॉल्वेंसी लॉ आ जाएगा और इस तरह से करके पर्सन कंट्रीज में बी नॉट फॉर मेकिंग द पेमेंट। तो इसके लिए एक थोड़ी सी प्लानिंग आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए बिजनेस हमारे को करना ही है। आने वाले टाइम के अंदर जब भी आप बैंक गारंटी दें तो उस बैंक गारंटी के अंदर ट्राई टू इम्प्रेस टू द बैंकर दैट माई लायबिलिटी शुड बी स्ट्रिक्टेड टू माई नेटवर्क इंस्टेड ऑफ होल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। ये प्रैक्टिस वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और यूरोप के अंदर भी प्रेवलेंट है। तो इफ वी कैन स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस प्रैक्टिस एंड अदर थिंग इज आल्सो मे बी बैंक स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। ऐसा प्रैक्टिकली अभी मैंने तो नहीं देखा कोई बैंक इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हो, बट वंस इफ यू स्टार्ट देन यू कैन गो फॉर इट। हाँ ये मैंने जरूर देखा कि कुछ कोर्ट्स के अंदर ये हेल्ड हुआ है कुछ केसेस के अंदर कि दे सेड टू द बैंकर कि ऑन व्हाट बेसिस इस बंदे की नेटवर्थ तो 2 करोड़ रुपए की है और आपने इसे गारंटी ले ली 500 करोड़ रुपए की, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टेकन दिस गारंटी, बट दैट इज ऑल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद ये है एक पॉइंट, इनफैक्ट आई थिंक इट वाज द लास्ट पॉइंट, जो आपने एग्रीमेंट करा है पर्सनल गारंटी का उसको सी द डेविल्स आई। व्हाई आई एम सेइंग टू सी द डेविल्स आई बिकॉज इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ लकूने मिल जाएंगे विच कैन सेव योर क्लाइंट। प्रैक्टिकली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक हमारे केस के अंदर उन्होंने एक ये इस तरह का गारंटी का एक एग्रीमेंट था। उस गारंटी के एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने वो करा समथिंग लाइक दैट को बॉरोवर टाइप का कुछ वर्ड यूज करा हुआ था वेयर बाय दे सेड कि लायबिलिटी विल बी जॉइंट एंड फेयर। तो in my opinion in that case under section 124 I remember contract act accordingly that we shall see later on also that personal guarantee agreement is not valid, number one. Number two, try to see the limitation also कि limitation अगर expire होगी है तो then you can get rid of your liability under personal guarantee. ये तो मैंने आपको बता दिया ये क्या कहते हैं ये प्लानिंग ड्यूरिंग क्रिप क्या करोगे। अब आपको लगता है कि जो जो मैंने एस्पेक्ट्स बताए वो प्लानिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, बट यू हैव इस वो तो एक वो आपके साथ हाथ में नहीं है। लेकिन अब मैं जो आपको प्लानिंग बता रहा हूँ ये 100% आपके हाथ के अंदर है। तो ये प्लानिंग क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी जो आपके पास एसेट्स है। अब आपके पास ये सिर्फ आपके पास अपने एसेट्स की प्लानिंग ही नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जो एसेट्स आपके हैं, जो आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के। अब फैमिली मेंबर्स की जब हम डेफिनेशन देखेंगे उसमें देखेंगे क्या है, बेसिकली स्पाउस एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स और चिल्ड्रन आते हैं, और जो रिलेटिव्स के एसेट्स हैं। why I am saying you this thing, ये मैं आपको इस करके कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली जो रिकवरी है वो इन्हीं एसेट से ही होगी जब आपके अगेंस्ट चाहे एज ए रीपेमेंट प्लान कह लीजिए या एज ए लेटर ऑन बैंक्रप्सी में कह लीजिए। एक हमारे को व्हेन आई वाज डूइंग लॉट ऑफ दीस केसेस तो ये पहली बार ही था, तो इसके अंदर मैंने सोचा कि किस तरह से अपने ये ग्रंटर्स के एसेट्स को सेव किया जाए। तो इसका सबसे अच्छा मेरे को क्लू मिला, details as prescribed in Form A being application for insolvency bankruptcy process as prescribed in the respective rules.
यस, मीनिंग देयर बाय कि अगर हम सेक्शन 94 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जब 94 की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एक फॉर्म ए में जाती है। फॉर्म ए जो है बड़ा डिटेल्ड हमारे से चीजें मांगता है कि इसके अंदर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ एसेट, डिटेल्स ऑफ योर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, डिटेल्स ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो। तो जो जो चीजें फॉर्म ए के अंदर मांगी जाती है, उनमें से जो एसेट पार्ट है उसको आप कम करने की कोशिश करें, और उसके अंदर कोई लाइबिलिटी पार्ट उसको आप इंक्रीज करने की कोशिश करें। एसेट पार्ट मतलब समझ आ रहा है कि क्यों कम करने का फायदा है। लाइबिलिटी पार्ट को इंक्रीज करने का क्या फायदा है, ये भी मैं आपको आने वाले स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। Planning to be a personal guarantor to corporate, if not, section 2F2G is made applicable. आज की डेट में जो ये प्रोविजंस है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ही एप्लीकेबल है, वेयर बाय पीजी इज द पर्सनल गारंटी इज गिवन अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर। ये याद रखिए, सेक्शन 2F और 2G which is with reference to the partnership firms or an individual other than that is there, जो अदर बिजनेसेस हैं उनके लिए है, तो उन पे अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये भी एक बात ध्यान रखिए। अब इस बात से आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, इफ योर पर्सनल गारंटी इज फॉर ए लिमिटेड पीरियड, देन यू वोंट बी लायबल आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड। यस, हमारे वहां पे ना सीओसी है, यानी कि क्रिप के अंदर जो सीओसी है दैट इज कॉल्ड कमेटी ऑफ क्रेडिटर। यहाँ पे एमओसी है, एमओसी इज मेंबर्स ऑफ कमेटी। मेंबर्स ऑफ कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके पास सिमिलरली वही पावर है जो सीओसी के पास है। तो सीओसी की जो पावर्स हैं वो इतनी वाइड हैं, स्पेशली स्विस रिबन के केस में, या उसके बाद सब्सिक्वेंटली लॉट ऑफ मेनी अदर केसेस आल्सो। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि जो कमर्शियल विजडम है ये सीओसी की, इसको तो किसी भी हालत में कोर्ट्स में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। मीनिंग देयर बाय कि एनसीएलटी और एनसीएलटी हैज नो राइट टू इंटरफेयर एनी ऑफ देयर कमर्शियल डिसीजन। सिमिलरली, you try to see जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, whether they are helpful to you, whether they will obey your saying, because lot of discussion is there, lot of concessions they can give it to you. So see to it that you have a planning for your MOC also. Yes, section 79 subsection 15 says that there are certain debts for which you are always liable. मीनिंग thereby कि ये इस तरह के डेट्स हैं, आपकी बैंकरप्सी हो जाए, आपका रेजिस्ट्रेशन प्लान हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनको आपको हमेशा पे करना ही करना है। अब ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर डेट्स है 79 सबसेक्शन 15 के, तो अगर आपकी कुछ लाइबिलिटी इनके अगेंस्ट है, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर अगर आप 2 साल तक की फॉरबेरेंस कर लें तो अल्टीमेटली यू कैन कम आउट क्लीन फॉर इट। तो ये लेकिन इन डेट्स के लिए आप कभी भी क्लीन वापस नहीं आते। यू हैव टू पे दिस डेट, दीज आर बेसिकली आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ द इंसॉल्वेंसी। अगर आपका इस तरह का कोई डेट है तो देन यू थिंक फॉर दैट बिफोर पुटिंग एन एप्लीकेशन। ये कौन कौन से डेट्स है ये बता देता हूँ। फाइन इम्पोज्ड बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल, damages for negligence, nuisance, or breach of a statutory, contractual, or other legal obligations, maintenance to any person under any law for the time being in force, student loan, and any other debt as may be prescribed. अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फाइन इम्पोज्ड बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल, से फॉर एग्जांपल आप एनसीएलटी में हेयरिंग है, आप किसी कारण से अटेंड नहीं करते, या किसी भी और कोर्ट के अंदर रेगुलरली हेयरिंग अटेंड नहीं करते, माय लर्नर्स वांट बी नोइंग मोर देन मी। अगर कोर्ट इस तरह से आपके ऊपर कोई 5,000, 10,000, 15,000 का कोई फाइन इम्पोज कर देती है, या कुछ और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन एनी फाइन इज इम्पोज्ड बाय यू बाय द कोर्ट, देन यू हैव टू पे दैट थिंग। उसके लिए आपको इंसॉल्वेंसी के अंदर कोई राहत नहीं मिलेगी। बट लेट्स नॉट कंफ्यूज दिस फाइन विद द फाइन जो जैसे हम लोगों ने वैट नहीं पे करा या इनकम टैक्स के अंदर हमने पे नहीं करा, उसके अंदर हमारे को 271C या 271 ट्रिपल ए की कोई पेनल्टी लग जाती है, जो फाइन लग जाता है। जब हम लोग ने टीडीएस नहीं जमा कराया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे को कोई फाइन लग जाती है, तो दैट इज नॉट अ फाइन इंक्लूडेड देयर। डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के अंदर ये होता है कि सपोज कर लो आपने किसी
किसी का एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट में किसी को मार दिया आपने, लेट्स प्रिज्यूम दिस, और उसके अंदर कोर्ट आपको ये कहता है जी आप इसको इतने कंपनसेशन दोगे, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी, या समथिंग लाइक दैट करती है। तो दिस जब आपके ऊपर कोई एक मंथली या ईयरली लायबिलिटी लगा दी जाती है। इनफैक्ट दिस थिंग इज वेरी प्रेवलेंट इन यूरोप एंड द अदर प्लेसेस, यूएसए वगैरह के अंदर। वहां पे अगर आप किसी को कार से मार देते हो तो वहां पे लॉ इज लाइक दैट कि आपको जो उसकी अर्निंग है जितनी है, लाइफ लॉन्ग आपको उसको पे करनी पड़ती है, चाहे आप उतने पैसे कमाओ या ना कमाओ। थर्ड वन इज मेंटेनेंस 20% अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। लाइक आपके पास आपका डाइवोर्स हो जाता है, तो इन दैट केस कोर्ट हैज ऑर्डर्ड कि आप ये मेंटेनेंस इतनी पे करोगे, तो इसका आपको पे करना ही करना है, इसका आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। स्टूडेंट लोन को इन्होंने इस करके यहाँ पे लिया है कि मेनी अ टाइम दे फाउंड दैट लॉट ऑफ फ्रॉड्स आर बीइंग कमिटेड, कि लोग स्टूडेंट लोन ले लेते हैं, जब रीपेमेंट की बारी आती है अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे भी उनके पास कुछ होता नहीं है दाएं बाएं, तो उनको स्टूडेंट लोन डिक्लेयर यानी कि से स्टूडेंट लोन से अपने आप को बचाने के लिए दे वर डूइंग दिस थिंग। तो इस करके अगर आपने स्टूडेंट लोन भी लिया है, यू हैव टू पे फॉर दैट। एज फार एज एनी अदर डेट इज कंसर्न, नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड टिल डेट। यस, एप्लीकेशन। ये जैसा मैंने इनिशियली बताया था, मैं इस चीज को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 60 है विच प्रिस्क्राइब्स कि ये इसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा। जब शुरू शुरू में ये लॉ बना गया था तो एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल था कि अगर आपके अगेंस्ट स्क्रिप्ट चल रहा है तो आपका ज्यूरिडिक्शन होगा एनसीएलटी, और जहां पे आपका स्क्रिप्ट चल रहा है वही एनसीएलटी का बेंच आपका ज्यूरिडिक्शन होगा। इसके अलावा बाकी सब कुछ आपका डीआरटी होगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स प्रिज्यूम द सिचुएशन, और एक लिमिटेड कंपनी दिल्ली में चल रही है, लेकिन उसका जो रहने वाला बंदा है वो चंडीगढ़ रहता है। तो इन दैट केस अगर क्या कहते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, अगर उसके अगेंस्ट स्क्रिप्ट चल रहा है, देन इट विल बी दिल्ली। अगर सपोज कर लो जिस कंपनी का वो ग्रंटर है उसका क्रिप्ट चल रहा है, अगर उसका क्रिप्ट नहीं चल रहा तो इन दैट केस इट विल बी चंडीगढ़। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको पहले जजोदिया की जजमेंट बताई थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई थी, सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट, ऑल्दो इट इज अगेंस्ट जो इनिशियल बीएलआरसी रिपोर्ट आई थी उसके ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट उन्होंने ये कहा है कि इन केस ऑफ कॉर्पोरेट ग्रंटर्स, सॉरी इन केस ऑफ पर्सनल ग्रंटर टू द कॉर्पोरेट, दिस जो जुरिडिक्शन है वो हमेशा की हमेशा जहां पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वही रहेगी, एनसीएलटी ही बेसिकली रहेगी। कहने का मतलब ये है कि हमने पढ़ा था कि सेक्शन 2E के करके ये एप्लीकेबल है, जब तक ये सेक्शन एफ और जी नहीं रखा यानी कि इंप्लीमेंट किया जाता। आई मीन टू से कि इनके एट प्रेजेंट ओनली पर्सनल ग्रंटर्स आर लायबल अंडर दिस इंसॉल्वेंसी लॉ। तो ये जो है ये एनसीएलटी ही रहेगी, डीआरटी में आज की डेट में कोई एप्लीकेशन नहीं जा रही। ओके, यानी कि अब हमारे को जो फीस कितनी पे करनी है, फीस इज क्वाइट मिनिमम। हमारे को जो सेक्शन 94 की एप्लीकेशन है फॉर्म ए में फाइल करनी है 2000। लेट्स रीच टू नाउ सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि हमारे को क्या क्या करना है। फॉर्म ए है वो फाइल करना है, 2000 रुपया है। फॉर्म सी के अंदर 2000 है। फॉर्म सी और ए के अंदर सेम चीजें हैं कि ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स ए के अंदर है वही सी के अंदर है, बट सी में लेकिन एक कंसेशन दी गई है कि ये क्रेडिटर ने फाइल करना होता है। जितनी डिटेल आपके पास अवेलेबल है उतनी आप इसके अंदर दे दो, बाकी देने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इसमें एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, जब तक ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर की जजमेंट नहीं आई थी तो हमने एक सेमिनार के अंदर हमने एनसीएलटी के चेयरमैन थे मिस्टर मुखोपाध्याय, हमने उनको बुलाया, हमने उनके सामने ये क्वेश्चन रखा कि सर ये ड्यूअल जुरिडिक्शन का इसमें इशू आ रहा है। अगर सपोज कर लो एक बंदे की ऑलरेडी डीआरटी में एप्लीकेशन चल रही है और उसके बाद यानी कि उसी बंदे की किसी कंपनी का क्रिप स्टार्ट हो जाता है, तो देन विल दैट रिकॉर्ड फ्रॉम डीआरटी बी ट्रांसफर टू द एनसीएलटी और नॉट? In fact, he very honestly said कि भैया इसके लिए तो मैं भी I can't give you any answer, but in my opinion, DRT and NCLT will jointly sit together and decided कि ये इसकी jurisdiction कहाँ पे आएगी. That was the answer of Mr. Mukhopadhyay. I still remember it. But I was a little bit against it. In my opinion, I was very clear with it कि हमारा एक section 238 है IBC के अंदर,
जो कि ओवरराइड करता है ऑल दी अदर, यानी इट हैज स्पेसिफाइड कि कौन कौन से लॉज को ओवरराइड करता है। उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। डीआरटी की जो जुडिक्शन है दैट इज मोर रिलेटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आईबीसी की जो जुडिक्शन है वो दैट इज मोर रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट। तो मैंने सर को ये कहा था, सर इन माय ओपिनियन द मोमेंट किप स्टार्ट दिस जुडिक्शन विल शिफ्ट टू द एनसीएलटी ओनली फ्रॉम डीआरटी। तो बट समहाउ जो हमारी थॉट थी ये prevailed, and honorable supreme court has exceeded even our thought, and it simply said ki in the case of personal guarantor, jurisdiction will always lie with the NCLT only. You can't file an application with the DRT. और जैसे बताया सेक्शन 94 95, जो अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीफली कि फॉर्म ई के अंदर अंदर क्या क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स ऑफ द ग्रांटर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, लिस्ट ऑफ एसेट्स ऑफ ग्रांटर इमीडिएटली फैमिली मेंबर एज ऑन एप्लीकेशन डेट, number of directorships, details regarding guarantee given, business particulars, particulars of debts and etc. And these are the all usual things. Basically देखिए कंपनी के केस में ये होता है कि सारा का सारा डाटा आपको एनसीए की साइट से मिल जाता है, या उसके रिकॉर्ड एज पर लॉ रखना कंपल्सरी होता है। बट इन द केस ऑफ डिजिटल देयर इज नो लॉ विच स्पेसिफाइज कि आप अपने रिकॉर्ड रखो। तो उस चीज को कवर करने के लिए पीपल यानी कि लॉ मेकर्स हैव थॉट ऑफ कि हम बहुत सारी डिटेल्स कर देंगे। ये मेरे ख्याल में जो ये फॉर्म है 15-16 पेज का फॉर्म है, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स देनी पड़ती है ताकि जो अपॉइंटेड रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल है उसको मैक्सिमम डिटेल्स मिल पाए फॉर रनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डेटर। Yeah, there is some, a debtor can't make the application also. These are the, quite usual, the thing is, he should not be undischarged bankrupt. Fresh start process ना उसका चल रहा हो, fresh start process अभी notify नहीं हुआ। मैं आपको आगे आने वाली slides बताऊंगा what is it, not undergoing any insolvency regulation process, undergoing a bankruptcy process, एक normal सी बात है। और important sections to know, since we are lawyers we should know all these sections. These are very very important sections. Section 28 which defines corporate debtor, section 522 which defines personal guarantor, 5A which defines corporate. but इसके अंदर ना debtors को पूरे एक्ट और रेगुलेशन में बहुत जगह पे लिया गया है, बट इसको कहीं डिफाइन नहीं करा। इनफैक्ट ललित कुमार जी के केस में ये एडवोकेट्स ने ये भी कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि दिस एक्ट जो रेगुलेशन या कंसर्न सेक्शंस एक्ट है, these did not define debtor, and debtor has been used at so many places. So it means that law is not complete. But ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ललित कुमार जी के केस में आर्गुमेंट को माना नहीं, उन्होंने कहा कि नया लॉ है, धीरे धीरे अपने आप अमेंडमेंट होके इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। और फिर एक ये कहा गया कि अगर किसी एक्ट की डेफिनेशन आईबीसी में नहीं है तो यू हैव टू सी 3-4 एक्ट्स आर देयर, लाइक Companies Act there, Income Companies Act there, Partnership Act is there, one or two more acts are also there, कि उनमें हम इस definition को देखा जा सकता है। But when I did R&D to understand the definition there, वो definition उन acts के अंदर भी नहीं दी हुई थी। तो ultimately we have to rely on our accounting standards जो हमारी institute issue करके उसके अंदर debtor को दिया हुआ था कि debtor mean a person who is liable to pay any money against services or goods taken by him. Yeah, fresh start. सेक्शन 79 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर डिफाइन करा गया कि एसोसिएट्स क्या हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वी नीड टू टेक केयर फॉर देयर एसेट्स आल्सो, एंड वेट टेक्निकली एसोसिएट्स ये बेसिकली सिंस आई एम फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड, जो हमारे पास है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ES 18 और एक हमारे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन है 40AB। ये दोनों डिफाइन करते हैं रिलेटेड पार्टीज। तो इन्हीं के अंदर जो उनके अंदर डेफिनेशन दी गई है ये वही है अप्रोक्सीमेटली, जस्ट टू रिमेंबर इट। बैंकक्रप्ट क्या है, बैंकक्रप्ट दैट वी शैल सी लेटर ऑन। डिस्चार्ज ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्चार्ज ऑर्डर इज बेसिकली वी ट्रीट इट एज ए थिंग जो कि हमारा रामबाण होगा। डिस्चार्ज ऑर्डर मिलने के बाद जो है क्या नाम इसका, एक मिनट सर, यस इट इज कंफर्टेबल नाउ। डिस्चार्ज ऑर्डर मिलने के बाद जो हम कहेंगे कि जो हमारा बैंकक्रप्ट है उसने गंगा नहा ली और नाउ ही कैन स्टार्ट हिज लाइफ फ्रेश।
अगर सेक्शन 79 की हम बात करते हैं, सब सेक्शन 2 है, which deals with associates and includes employer employee also. Yes, one thing very important is there कि इसके अंदर एक जो हट के डेफिनेशन है, इसके अंदर employer is also included there and employee is also included there. Meaning thereby, if I talk theoretically, if I am working in a Reliance company, तो अगर मेरे केस bankruptcy start हो जाती है, तो then my Reliance will also be liable for this thing. Subsection 17 deals with immediate family members, which are spouses, dependent children and parents. ये मैंने आपको already बता दिया. Subsection 3 deals with bankruptcy. Subsection 13 है जो deal करता है discharge order, meaning thereby discharge to debtor under section 92, 119 and 138. और एक subsection 22 है which deals with undischarged bankrupt. Means a bankrupt who has not received a discharge order. This is also very important. Discharge order मिलना, और अगर discharge order applicable होने के बाद ना मिले तो then it has lot of policies which I shall discuss with you later on. Or section 82 deals with eligibility of qualifying debts under section 138. ओके, मैं आपको फ्रेश स्टार्ट बता रहा था कि फ्रेश स्टार्ट क्या है. सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 डील्स विद फ्रेश स्टार्ट. इट हैज नॉट बीन नोटिफाइड, और इसका नोटिफिकेशन के बाद भी कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये टाइम बताएगा. रीजन फॉर दैट इज दैट दिस इज एप्लीकेबल only for those persons whose gross total income is less than 60,000 rupees, whose owning value of asset less than 20,000 rupees, and whose qualifying debt is less than 35,000 rupees, and he is not owning a dwelling unit. तो ये मैंने इस करके आपको बताया. अभी ये नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हमारे को जब सेक्शन 99 के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो वी हैव टू स्टेट दैट वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एलिजिबल फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस और नॉट. इफ इज एलिजिबल देन वी कांट गो फॉर द रीपेमेंट प्लान. वो हम आगे आके इसको देखेंगे. मोराटोरियम, नो लेट्स जो क्रिप का काम करते हैं, दे आर ऑल अवेयर ऑफ मोराटोरियम. मोराटोरियम की डेफिनेशन जो है पर्सनल गंटर के केस में कोई नहीं ली गई. ये हमने डेफिनेशन जो है इसकी जब व्हेन वी ट्राई टू सी टू इट, तो दिस डेफिनेशन इज अवेलेबल ओनली अंडर सेक्शन 14, व्हिच मींस दैट moratorium, whenever the moratorium starts, all these suits against me get halted. I can't transfer any of the assets. सरफासी की अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है मेरे केस, that also get halted. If I have any property in my possession, for example, say I'm having a rented premises with me. Landlord can't get it that thing for me after start of the moratorium. Similarly, in this case, one I would like to share it with you. Something very terrible happened. What happened is that in the case of companies, for example, in the case of your telephone companies or mobile companies, they get some licenses. Similarly, in other places, some licenses are there. And even if it's initially when it started, तो गवर्नमेंट जो है वो एक बार मोरेटोरियम स्टार्ट हो गया तो वो लाइसेंसेस चाहे उनके अगेंस्ट पेमेंट करी हो या ना करी हो वापस नहीं ले सकती. बट लेटर ऑन क्रिप्ट के अंदर अमेंडमेंट आई वेयर बाय दे सेड दैट एनी लाइसेंस फी व्हिच इज लायबल यू नीड टू पे टू इट to keep live that license, meaning thereby कि moratorium is such a powerful thing कि it stops everything against you, which I've already told you, suits, assets, surface, supply of essential services, even supply of essential services के case में आपको that will continue, they can't discontinue, meaning thereby कि essential services में जैसे electricity की supply है, water supply है आपको, तो these are 2-3 essential services, ये computer related services है ये. अब moratorium इसके अंदर क्रिप्ट के अंदर मोरेटोरियम सर सेक्शन 14 के अंदर है, वो एक ही टाइप का होता है. लेकिन इन केस ऑफ पर्सनल गंटर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोरेटोरियम. वन मोरेटोरियम इज अंडर सेक्शन 96, another moratorium is under section 101 and 100. Now let's see what basically the quality of this moratorium is. जो जैसे ही हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 96 का मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन टिल इट्स एडमिशन. इसका नो टाइमलाइन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड.
फाइनल सेक्शन 101 ये जैसे ही ये क्या कहते हैं एनसीएलटी ऑर्डर करती है एप्लीकेशन एडमिशन का, वो तब से लेके 180 डेज तक रहता है और टिल द अप्रूवल ऑफ द रीपेमेंट प्लान विच एवर इज अर्लियर that any legal action or proceeding stayed and no fresh proceedings also started. लेकिन 96 और 100 के मोरेटोरियम में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब 96 का मोरेटोरियम चल रहा है उस समय आपके पास कोई भी एसेट्स हैं, आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो, बट जब फाइनल मोरेटोरियम का स्टार्ट हो गया, यू कांट ट्रांसफर, alienate, encumber, dispose of assets or legal rights or any beneficial interest. This is a something very big difference. In terra moratorium में I would like to tell my advocate friends again, जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी, आपके पास अगर कोई एसेट्स है तो आप उनको बेच सकते हो पर्सनल गंटर के पास, पर जैसे ही फाइनल मोरेटोरियम आ गया, इसके बीच में कई बार 3 महीने लग जाते हैं, कई बार 6 महीने लग जाते हैं, कई बार साल 1.5 साल भी लग सकता है। तो आफ्टर द मोमेंट यू गेट द फाइनल मोरेटोरियम ऑर्डर और यू कांट डू इट, इट्स फाइनल मोरेटोरियम लाइक सेक्शन 14 मोरेटोरियम क्रिप। और सेकंड थिंग इज दैट इट अप्लाइज टू, अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर लेटर स्टेज में अगर ये जैसे नोटिफाई हो जाएगा सेक्शन 2F या G के अंदर, तो इन दैट केस इट विल अप्लाई टू ऑल पार्टनर्स आल्सो एंड इट शैल नॉट अप्लाई टू नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस। वो मैंने आपको पहले बताया, आज की डेट तक कोई भी नोटिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं है। Now let's see that when we were filing this application, what particular difficulties we faced while filing this application. I have prepared 1 or 2 slides for that also, so that जो लोग इसकी practice करना चाहते हैं, जिस practice के अंदर आना चाहते हैं, they should understand what practical difficulty I faced, so that they should not face. No form prescribed for public notices as per section 102. सेक्शन 102 कहता है कि आपको 3 दिन के अंदर पब्लिक नोटिस देना है। जब आपका पब्लिक नोटिस है ना, उसको फॉर्म ही प्रिस्क्राइब नहीं है, आप किस फॉर्म में दोगे? क्रिप के अंदर फॉर्म ए प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको उसके अंदर ये पब्लिक नोटिस देना है, तो इन दैट केस यू आर अवेयर ऑफ इट फॉर्मेट। अब हमने सोचा कि ये पब्लिक नोटिस किस फॉर्म के अंदर दें, तो एज यूजुअल अगर आप आईबीबीआई की साइट पे जाके जाओगे ना, तो उसमें देखो सब लोगों ने यही करा कि जो फॉर्म ए का क्रिप के अंदर फॉर्म था उसी के साथ नोटिस दे दिया। बट इन माय ओपिनियन दैट वाज नॉट राइट अप्रोच। वी शुड हैव टेकन ये जो पब्लिक नोटिस का फॉर्म है, ये बैंक्रप्सी के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। तो बैंक्रप्सी के अंदर जो बैंक्रप्सी इज मोर क्लोजर टू द दिस इंसॉल्वेंसी प्लान इन द केस ऑफ रीजन, तो हमारे को जो फॉर्म सी वहां पे प्रिस्क्राइब्ड है, उस फॉर्म सी को मॉडिफाई करके वी शुड यूज इट फॉर public notice. Second question is, heavy duty has been costed on debtor for preparation of statement of affairs under regulation 10, but no detail is provided by the grantor. What basically is there कि रीपेमेंट प्लान बनाने के लिए हम एक डेटर को भी ड्यूटी कॉस्ट करेगी है कि अपना स्टेटमेंट अफेयर्स बना के देगा। स्टेटमेंट अफेयर्स मींस कि एसेट्स क्या, लायबिलिटी क्या है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर। बट ग्रांटर कभी भी ये डिटेल नहीं देता आपको, स्पेशली इन द केस ऑफ 95 एप्लीकेशन। 94 की एप्लीकेशन में तो सीधा कह देता है मेरे पास कुछ है ही नहीं, और इनफैक्ट 94 की एप्लीकेशन तभी बंदा फाइल करता है जब वो पूरा का पूरा अंदर से जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि जो आपने फॉर्म ए सी में डिटेल फाइल करी, जो आपने उसकी आईटीआर की पासवर्ड लिया, या आईटीआर की जो डिटेल फाइल करी, या इनकम टैक्स ऑफिस ऑनलाइन जो डिटेल मिली, उसी के बेस पे आप ये उसकी स्टेटमेंट अफेयर्स बना लीजिए और उसमें प्रोविजो दे दीजिए कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल आई हैव डन इट। ड्यूटी कास्ट ऑन आरपी अर्लियर जो स्टेटमेंट अफेयर्स है ये डेटर को बनानी थी, अब आरपी को बनानी है रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान मतलब कि वो जो उसने स्टेटमेंट ऑफ फेस दिए उसके बेस पे वो क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे करेगा, और जब उसके पास वही पहली वाली चीज नहीं मिलती तो ये कैसे आरपी रीपेमेंट प्लान बनाएगा। तो उसके अंदर ये है कि वी फॉर दिस रीपेमेंट प्लान वी हैव टू फाइल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 104। what happened in my case? In my case, what I did, when same problem of when I faced it, I wrote to the creditor that no assets has been given to me by this thing, and as a result of which I'm not able to prepare any repayment plan, and there's no use of holding the this thing also, creditors meeting also, and on that basis I filed my report under section 104 with the adjudicating authority. जब कोई चीज ही नहीं है तो मैं क्या क्रेडिटर्स की मीटिंग करूं, मैं क्या उसके लिए
वो सब चीजों को करो, तो इन सब चीजों को ओवरराइड करते हो। अब इसका क्या फैसला हुआ है, अभी मेरी माई एप्लीकेशन इज पेंडिंग, 15 तारीख को वो डेट थी उसकी, अब 15 तारीख को कुछ हुआ नहीं फैसला, इट हैज बीन पोस्टपोन्ड फर्दर, so we need to go further. अब एक और बड़ी दिक्कत आती है, we have to file report under section 99, we have to file report under section 104, we have to prepare list of creditors, we have to prepare statement of health, we have to prepare repayment plan. And इन सब का कोई फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है as far as VRP is concerned. This with the passage and time we'll be able to do it. And only thing is, the more you experience, the better you will prepare this application. No ready-made solution for that is available with me. बट वट अगर किसी ने प्रैक्टिकली काम करना है, किसी को केसेस मिले हैं, किसी ने करना है, जो कोई केस फाइल कर रहा, तो ही कैन ऑलवेज नॉट मी पर्सनली, आई मे हेल्प हिम व्हाट आई हैव डन एट माय एंड. The notice time period prescribed is 14 days under, then 7 days under section 107(113). What I mean to say is that, in the case of meeting, these are time period prescribed, जो कि बड़ा मुश्किल होता है obtain करना. तो इसका सबसे अच्छा solution ये है, जैसे ही आप पहली MOC की मीटिंग करो, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की करो, उसमें अपना टाइम जो है एक या 2 दिन का ले लो for intimating to them and for holding all these things. NCLT benches started asking legal documents, power attorney, legally valid authorization from the applicant, directed in favor of RP to yes. This, one new practice has been started. फॉर्म ए और बी जब हम लोग फाइल करते हैं, उसके अंदर कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपने क्या करना है, बट नाउ NCLT benches have started since a lot of all these documents. In my opinion, these are not required or these are not legal, but you need to prepare it. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी एक्सेप्ट हो जाए, तो डू फाइल इट स्टेटिंग क्लियरली दैट इट इज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द जुडिशरी. सर अभी तो 10-15 मिनट आगे, आई एम मूविंग फास्ट लिटिल बिट बिकॉज अभी बैंक्रप्सी का पूरा चैप्टर है, वो मेरे को करना है. तो दिस इज बेसिकली क्रिप एंड IPIRP में जो टर्मिनोलॉजी है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए मैंने ये स्लाइड बनाई थी. IPIRP मतलब इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फ्रॉम इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो ये मैं यूट्यूब पे अपना शेयर कर दूंगा. पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड टू नो लिटिल बिट इन डिटेल, दे कैन गो फॉर इट. आई एम जस्ट पासिंग थ्रू इट क्विकली. क्रिप और IPIRP के बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, उसकी मैंने एक स्लाइड बनाई है. तो बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ टाइम, आई एम जस्ट मूविंग डूइंग इट फास्ट फॉरवर्ड. ये हमने कंपैरिजन करा था बिकॉज वी पीपल आर क्वाइट ट्यून टू क्रिप. ये पर्सनल इंसॉल्वेंसी और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में क्या फर्क है, पर्सनल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या फर्क है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में क्या फर्क है, पर्सनल बैंक्रप्सी और कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी में क्या फर्क है. तो आई एम जस्ट पासिंग ऑल दिस थिंग. तो जो भी बहुत डीप रूटेड स्टूडेंट है, ही कैन गो थ्रू इट. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो पर्सनल गारंटर के केस में सेक्शन 79 सबसेक्शन 14 दैट इज रूल 5, जो कि आपकी इंसॉल्वेंसी के अंदर यूज नहीं किए जा सकते. मीनिंग देयर बाय योर ऑल एसेट विल बी यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ द क्रेडिटर्स, बट दीज आर दी सम एसेट जो कि आपके लिए यूज नहीं किए जा सकते. उनमें अनइंकम्बर्ड टूल्स, व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एप्लीकेशन. मीनिंग देयर बाय, तो अगर आपके पास कोई एक या दो कारें हैं जो एक नॉमिनल सी अमाउंट किया, तो नेचुरली दैट कैन नेवर बी सोल्ड for recovery of the debtor. Furniture वगैरह, this is something very small. Personal ornament that can't be parted with in accordance with the religious uses. इसके अंदर सरकार ने लिमिट फिक्स कर दी है 1 लाख रुपए की मैक्सिमम. यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ज्वेलरी 1 लाख तक की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख तक की है, that can't be taken from you for the payment to the creditor. अनरिकवर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड पेंशन प्लान, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दूंगा. आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी आपको अमाउंट मिलता है, या उसके अगेंस्ट कोई भी पेंशन प्लान मिलते हैं के अगेंस्ट आपको पेंशन मिलती है, यू दोस कांट बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट टू द क्रेडिटर्स. तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिलीफ गिवन टू देम.
or to the debtor. And if you try to plan your affairs, you can plan your affairs in such a way so that there is nothing there. एक आपको घर की भी राहत मिलती है इसके अंदर। जो घर की राहत मिलती है उसका अमाउंट फिक्स है कि एक घर आपसे भी नहीं लिया जा सकता अंडर दिस थिंग। ये वो जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू 20 लाख है इन द केस ऑफ अर्बन एरिया और 10 लाख है रूरल एरिया। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपके पास घर है तो आपका घर जो है वो नहीं लिया जा सकता आपसे। 20 लाख का वैल्यू तक का और 10 लाख की इन केस ऑफ रूरल एरिया। ये डेट्स जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी है कि ये हैज टू बी देयर। ये दिस इज बेसिकली स्लाइड मेंट फॉर वी प्रोफेशनल कि हमारी अपॉइंटमेंट के लिए हमारे को क्या क्या क्वेश्चन देने चाहिए। सिंस माय मोस्ट ऑफ द ऑडियंस आर एडवोकेट्स, दे मे नॉट बी मच इंटरेस्टेड इन इट, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू इट। बट जिसको ये इसके बारे में देखना है तो आई विल शेयर माय I can share my PPT with him, and in fact YouTube also he can have a look on it. This is replacement of RP and public notice. These are all the procedural aspects. Claims and creditors statement of affairs, these are also procedural aspects. I'm just passing through it. Statement of affairs, जो मैंने statement of affairs कहा था वो उसके अंदर क्या क्या डिटेल होगी वो यानी कि I have taken my this detail. रीपेमेंट प्लान के अंदर क्या क्या डिटेल होगी that I have taken it there. अगर आपको यू अपॉइंटेड एज एन आरपी और आपको वो क्या कहता है डेटर वो कोऑपरेट नहीं करता, जो रीपेमेंट प्लान एग्री करता वो रीपेमेंट नहीं करता, तो उसके बारे में आपके पास क्या क्या पावर्स हैं, दिस इज ऑल देयर। ये मीटिंग्स है, ये बेसिकली ये मीटिंग सारी वैसी हैं जैसे हम सीओसी के अंदर करते हैं। आई एम जस्ट पासिंग थ्रू। ये एक मैंने चार्ट बनाया था कि कॉर्पोरेट्स और नॉन कॉर्पोरेट्स के बीच में क्या क्या फर्क है, कौन कौन सी जुरिडिक्शन है, कैसे कैसे उससे करना है। दिस इज फॉर रेफरेंस से, दिस इज द होल प्रोसेस। जो मैंने अभी तक बात करी ये सारा का सारा ये प्रोसेस है यानी कि इसके लिए इट हैज बीन समराइज्ड देयर। As far as fees for is concerned for doing this work, ये सरकार ने कुछ इसका मापदंड नहीं रखा हुआ। उन्होंने कहा जी मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया गया है। बट एक अगर सपोज करो एक ऑन दी एवरेज अगर आप आरपी की एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इसकी फीस जो है जो मार्केट रेट है 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच में होती है डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ द डेटा। तो that is that I can share with you. This is my experience, but again it can vary. What I'm telling you is based on what fee charges in Delhi. Okay, now let's start. We have only 5-10 minutes. Bankruptcy. देखिए ये bankruptcy is the main aspect जो हमारे को समझना है what it means. ये जो रीपेमेंट प्लान जो था, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो था, ये इट वाज अ प्रीएम्बल टू द बैंक्रप्सी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि बिफोर बैंक्रप्सी स्टार्टेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, I just tell you, I share with you one thing कि this law is highly tilted towards personal conduct। यानी कि अगर हम जैसे कहता है ना कोई एक लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंस इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्वड इन इट, तो क्रिप जो है दैट इज हाईली टिल्टेड अगेंस्ट क्रेडिटर्स। ये वाला जो लॉ है दिस इज हाईली टिल्टेड अगेंस्ट पर्सनल कंट्रस्ट। तो इसके अंदर अगर सपोज कर लो किसी की रीपेमेंट प्लान आती है या नहीं आती है, डिस्चार्ज अंडर 129 के अंदर सॉरी डिस्चार्ज कह रहा हूँ, आपने 104 के अंदर कर दिया, उसके बाद 114 के अंदर कोर्ट ऑर्डर कर देगी, एनसीएलटी आपको ऑर्डर कर देगी। तो जैसे ही ऑर्डर होगा आपके अगेंस्ट तो विद इन 3 months यू हैव ए राइट टू द डेटर भी इसके अंदर जा सकता है, क्रेडिटर भी इसके अंदर जा सकता है। ही कैन फाइल हिज बैंक्रप्सी एप्लीकेशन। अब बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन की बात मैं आपको कहूं तो आज की डेट तक पूरी इंडिया में एक भी एप्लीकेशन प्रैक्टिकली फाइल नहीं हुई। रीजन उसका सिर्फ ये है कि जो हमने पहले पढ़ा है रीपेमेंट प्लान वगैरह के बारे में, अभी वही केसेस चल रहे हैं। तो इस करके इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई डोंट हैव जब कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करता, आई मस्ट कन्फेस यू आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि इसके अंदर क्या इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है। बट बैंक्रप्सी के अंदर
क्या इसकी यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये लॉ क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. दिस इज ऑल गिवन इन चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द आईबीसी कोड. ये इसकी एप्लीकेशन जो आती है, ये जाती है सेक्शन 121 के अंदर. डेटर हिमसेल्फ कैन फाइल अंडर सेक्शन 122 बी अकम्पनीड विद रिकॉर्ड्स ऑफ द आईआरपी, जो इंसॉल्वेंसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हमारा रिकॉर्ड है उसके बारे में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, adjudicating authority order whereby they have terminated the insolvency proceedings. हाँ, इसके अंदर this is something very important. It can't be withdrawn without the consent of adjudicating authority. By creditor under section 123. Be accompanied with the records of the IRP. Same thing जो हमने ऊपर लिखा है. Yes. Circumstances under which application for bankruptcy can be made. There are only 3 sections against which this application can be made. Section 100 subsection 4, rejection of insolvency proceedings by adjudicating authority. जब हम 99 की रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके बाद वो 99 की रिपोर्ट पे ये कह देते हैं कि इनके केस insolvency proceedings नहीं स्टार्ट करनी है, that case you can do it. सेक्शन 115 सबसेक्शन 2, रिजेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. हमने एक रजिस्ट्रेशन प्लान एक सबमिट करी इनको आरपी ने, और उस रजिस्ट्रेशन प्लान को कोर्ट ने नहीं माना और कह दिया कि ये रजिस्ट्रेशन प्लान एज पर लॉ नहीं है. तो कोर्ट विल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 115 सबसेक्शन 2 कि ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ग्रांटर इज नॉट अलाउड. तीसरा सेक्शन है 118 सबसेक्शन 3, जहां पे ये होता है कि एक हमने रीपेमेंट प्लान दी, creditors also agreed, adjudicating authority also put their stamp कि this repayment plan like registration plan is okay, but उस रीपेमेंट प्लान को के अंदर यह था कि 3 साल के अंदर वो अपने क्रेडिटर्स को ऐसे 5-10 लाख रुपए करके देगा, लेकिन उस रीपेमेंट प्लान को डेटर ने नहीं माना या डेटर ना इम्प्लीमेंट कर पाया. In that case also adjudicating authority will order for ending of insolvency process with that particular grantor. In that case also an application under section for bankruptcy be filed. जैसा मैंने उसके अंदर कहा था, यहाँ पे भी इंटरम मोरेटोरियम जैसे ही आपकी देखिए, आप लेट्स डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स. एक आपने पहले हमारा स्टार्ट हुआ इंसॉल्वेंसी पर्सनल पीजी का केस इंसॉल्वेंसी. द मोमेंट दैट एप्लीकेशन फाइल्ड एंड टिल द डेट ऑफ द ऑर्डर बाय द एनसीएलटी, दैट मोरेटोरियम विल बी देयर. The moment order from the NCLT comes out to be there, that entire moratorium or full moratorium will stop till we file an application under bankruptcy. तो जब bankruptcy की हम application file करेंगे तो interim moratorium under section 124 start हो जाएगा. इस interim moratorium के अंदर क्या होगा? Same legal proceedings will be stayed. If against from, then interim moratorium for against all the parties. So immediately आपको IP को point करना पड़ेगा. Who will be here known as, वहां पे उसका नाम था RP, resolution professional. Here his name will be bankruptcy trustee, BD. He will be in short known as BD. This similarly has to be appointed. अगर डेटर की एप्लीकेशन तो डेटर अपॉइंट करेगा, क्रेडिटर की एप्लीकेशन क्रेडिटर अपॉइंट करेगा. और अगर दोनों ही नहीं अपॉइंट करते तो इस केस में देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल अपॉइंटेड. सेक्शन 126 के अकॉर्डिंगली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इसका ऑर्डर 14 डेज में पास करना होता है, लेकिन 14 डेज का 14 मंथ में भी ऑर्डर पास करते हैं, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट. ऑर्डर इज वैलिड टिल डेटर इज डिस्चार्ज. सबसे बड़ा इस ऑर्डर का फैक्ट ये होगा, द मोमेंट दिस ऑर्डर इज एप्लीकेशन एडमिटेड एंड एनसीएलटी पासिंग एन ऑर्डर, द होल एस्टेट ऑफ द ग्रांटर, पर्सनल ग्रांटर, shall go to the bankruptcy trustee. जैसा कि क्रिप के अंदर होता है कि सारे एसेट्स आपके पास आरपी के पास आ जाते हैं, similarly here everything will go to the bankruptcy BT mean bankruptcy trustee who has been appointed by the court. तो ये कुछ प्रोविजन है जो सिमिलरली हैं रेशन प्लान जो हमने पहले पढ़ा था कि 129, 130 पब्लिक नोटिस देना आपको,
क्लेम्स आपको इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर फाइल करनी है, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स की सेक्शन के अंदर करनी है। इसका भी प्रोसेस सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने कुछ करा नहीं, तो इसका क्या, आई कैन टेल यू कि भाई डूइंग प्रैक्टिकली व्हाट डिफिकल्टीज वी फेस इट। बस इसमें एक थोड़ा सा फर्क है जो मैं भी आगे थोड़ा सा आपको स्लाइड के अंदर बताऊंगा। या अगर एक बारी बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन फाइल हो गई एंड आफ्टर दैट कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग एवरीथिंग कि उसके पास पैसे थे, उसके पास स्टेट थी, उसके अगेंस्ट उसने क्रेडिटर्स को क्या पेमेंट करा, क्या नहीं करा, तो आफ्टर जब करा या नहीं करा, आफ्टर दैट bankruptcy trustee can apply for the discharge of that particular person under section 138. He can do it on the expiry of 1 year, और एक यानी किन सर्कमस्टांसेस के अंदर डिस्चार्ज के लिए कोर्ट को लिख सकता है बैंक्रप्सी ट्रस्टी ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 year, मीनिंग देयर बाय जब एप्लीकेशन फाइल हुई, एडमिट हुई सॉरी, उसके 1 साल के बीच में, within 7 days of the approval of COC of completion of administration, meaning thereby कि जो भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर थे उन्होंने उनको पैसे मिल गए, जब वो सेटिस्फाई हो गए, तो दे कैन आल्सो राइट टू द आस्क द बैंक्रप्सी ट्रस्टी टू फाइल दिस थिंग। तो इन दो सर्कमस्टांसेस के अंदर बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो है डिस्चार्ज ऑर्डर की अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस डिस्चार्ज ऑर्डर का बेनिफिट क्या है? ये इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, all the bankruptcy debts provided that a discharge order shall not affect the all the bankruptcy debts provided that is discharged shall not be affected there, meaning iske andar ek one very big thing is there. This discharge order shall be applicable for only for those debts which are part and parcel of this bankruptcy process. Meaning thereby, let's understand this thing with an example. Meaning thereby, there is a one the personal guarantor or debtor. उस डेटर के केस 8 या 10 कंपनीज के उसको पेमेंट करनी है, लेकिन जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग है 3 या 4 कंपनी ने ही फाइल करी, या एक दो कंपनीज ने क्लेम वगैरह फाइल कर दिया, इसके अलावा उसने और किसी कंपनी ने कुछ नहीं करा, तो इन दैट केस जो डिस्चार्ज मिलेगा उसको सब 10 के 10 क्रेडिटर्स के केस नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको वही 6 या 7 क्रेडिटर्स के केस मिलेगा जिन्होंने अपना क्लेम फाइल करा या जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है। दिस इज अ वेरी बिग लैकुना, हाउ why government has allowed this thing, I don't know। अब देखिए इसके अंदर सिचुएशन क्या हो सकती है। लेट्स सी कि एक डेटर है, डेटर के बैंक को उसने पैसा देना था, बैंक वालों ने उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर दी, फेयर एनफ। अब उसकी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज भी थे, से इनकम टैक्स के या जीएसटी के या समथिंग। अगर जीएसटी इनकम टैक्स वाले उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं फाइल करते, जब अपना क्लेम नहीं फाइल करते, तो उसको उन इनकम टैक्स और वैट के ड्यूज या जीएसटी के ड्यूज के अगेंस्ट जो है कोई डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। मीनिंग देयर बाय कि ये डिस्चार्ज ऑर्डर मिलने के बाद भी वो अगेन उसके अगेंस्ट बैंक्रप्सी स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि क्रिप के अंदर यह है कि वंस यू गेट दिस रजिस्ट्रेशन प्लान और लिक्विडेशन, जब भी आप उसके अंदर जाते हो सेक्शन 33 के अंदर, तो आपको सब डेट से डिस्चार्ज मिल जाता है। इस केस में सिर्फ उन्हीं डेट से डिस्चार्ज मिलता है आपको जो डेट्स आपके यानी कि फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बैंक्रप्सी। तो दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये डिस्क्वालिफिकेशंस हैं कि एक बंदा जब जब उसके अगेंस्ट बैंक्रप्सी चल रही है तो उसके अगेंस्ट क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, यानी कि व्हेन बैंक्रप्सी एप्लीकेशन फाइल टिल ही सीज द डिस्चार्ज ऑर्डर, तो व्हाट हैंडीकैप्स आर विद हिम, लॉट ऑफ हैंडीकैप्स आर विद हिम, जिससे मैंने कुछ नोट डाउन कर दिया। रिमेन डिस्क्वालिफाइड अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट, दैट इज यानी कि बेसिकली जब तक उसके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन फाइल्ड है, ही कांट डू हिज प्रैक्टिस, सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आईपी की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एडवोकेट है तो एडवोकेट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ही कांट होल्ड एनी पब्लिक सर्वेंट और ऑफिस एज पर इलेक्शन और लोकल अथॉरिटी। Section 144, 141, he can't be a director, he can't take charge of the state or take debt, inform business partners of bankruptcy, inform all transactions above 1 lakh rupees, no legal action, he can't travel overseas without the permission of a adjudicating authority. These are the forbearances which he has to bear when bankruptcy started against it,
एंड टिल द टाइम ही रिसीव्स डिस्चार्ज ऑर्डर। तो अभी प्रैक्टिकली किसी के अगेंस्ट ये स्टार्ट नहीं हुआ। इसका लॉ ने तो 1 साल का टाइम प्रिस्क्राइब करा हुआ है, लेकिन ये 1 साल होता है या 2 साल होता है या 3 साल होता है, ओनली टाइम विल टेल। बट ही हैज टू बेयर ऑल दिस forbearances. He should be ready कि ये मेरे को during my bankruptcy period I have to bear all this thing. So this is all. Hopefully, I think I've been able to uh, satisfy to my all the audience, advocate audience, कि जो एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है, इसके जो 2 पार्ट्स हैं, एक स्टेप जो मैंने पहले बताया आपको, दूसरा पार्ट जो बैंक्रप्सी का मेनली मैंने आज डील करा है। तो हाउ यू कैन प्लान द अफेयर्स ऑफ योर क्लाइंट्स, अगर वो बैंक्रप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अगर उनके अगेंस्ट हो गया तो कैसे अपने आप को उन्होंने बचाना है, या इस प्रोसेस के अंदर डिस्चार्ज ऑर्डर मिलने तक उनको क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। एंड दिस इज ऑल। अब इसके अंदर बैंक्रप्सी के अंदर जो फीस है ये प्रिस्क्राइब करी गई है कि ये इट इज लाइक लिक्विडेशन की तरह फीस है। इसका एक टेबल है जो मैंने आपके सामने रखा है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी द पेशेंस here. Thank you very much. थैंक यू। अब देख लेते हैं, अगर if somebody has a question we can unmute that person. Yeah, please, if anybody has a question, he can ask me. Yeah, we can bring down the slide. सुमित जी पूछो। हाँ जी सुमित जी बताइए प्लीज। Good evening, sir. Thank you, Anand, good sir, evening, for sir. the wonderful insights. A very new Haan ji, haan topic for all of us. Sir, I just want to know a basic idea, because 3 discharge orders are enumerated in the law, which is one is under 92, 119, and 138. So, उसमें basically क्या फर्क होता है जी, and what are they? If you can give a little idea of these 3 different discharge orders. देखिए, जो ये डिफरेंट 3 तरह का डिस्चार्ज ऑर्डर हैं, ये इनके अंदर जो हैंडीकैप है उसके अंदर फर्क है। इफ यू सी, वी कैन टेक आउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड देन सी टू किसके अंदर क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। ये हर डिस्चार्ज ऑर्डर के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के दिए हुए हैं। दीज आर द ब्रॉडली थिंग्स देयर। All right, thank you, sir. और एज फार एज इनिशियल थिंग्स आर कंसर्न, जो हमने रीपेमेंट प्लान के टाइम इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर देखा था, उसके अंदर भी 3 तरह के ऑर्डर्स हैं कि जिनके बेस पे आप बैंक्रप्सी स्टार्ट कर सकते हो। Right. मुकेश जैन जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, यू कैन गेट योरसेल्फ अनम्यूटेड। हाँ जी मुकेश जी बताइए। यस सर। अब मुझे बताइए सर, ये तो अभी तो एप्लीकेबल नहीं है जो आज हमने देखा है, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है या बैंक्रप्सी प्रोसेस है, बट एज फार एज द व्हाटएवर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस व्हिच वी आर डूइंग, हाउ फार इट इज एप्लीकेबल टू अस इन presently with the directors as far as CD is concerned? सर मैं आपको ये बताऊं मुकेश जी, ये बैंक्रप्सी वाला प्रोसेस है, ये ऑलरेडी नोटिफाइड है, और एज फार एज फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है ये नोटिफाई नहीं हुआ। जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, बैंक्रप्सी से पहले, बैंक्रप्सी स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट ने एक सब ग्रंटर्स को, डेटर्स को एक मौका दिया है कि आप क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू या रीपेमेंट प्लान के थ्रू अपने आप को बाहर निकाल दो ताकि आपकी ये बैंक्रप्सी स्टार्ट ना हो। तो अभी एज फार एज प्रैक्टिकली थिंग्स आर कंसर्न, अभी जितनी भी एप्लीकेशन, बिकॉज ये 22 चल रहा है ना, दिसंबर 20 के अंदर ये नोटिफाई हुआ था। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ललित कुमार जैन जी का केस चला गया, जिसके अंदर मेन डिफेंडेंट यही थे, मुकेश अंबानी, सॉरी अनिल अंबानी एंड अदर पीपल की हु डिड नॉट अलाउ दिस लॉ टू मूव फॉरवर्ड। तो वो जब वो चला, ये 6 महीने तक उनके, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज वेरी क्विक इन दैट केस कि ये बेसिकली जो IBC-IP के जो आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसी को चैलेंज करा गया था रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर, मेनली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, बिकॉज IBC-IP इज बेस्ड एट दिल्ली। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सब हाई कोर्ट्स की पिटीशन क्लब कर लिया और कहा कि हम इसके ऊपर इकट्ठा डिसीजन लेंगे, तो उन्होंने डिसीजन लिया। लेकिन उसके बाद अगेन एक
गुरमीत सोधी का केस दोबारा आ गया है, गुरमीत सोधी के केस के अंदर फिर प्रिजन को चैलेंज करा गया है, एंड नाउ अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ग्रांटिंग स्टे अगेंस्ट ऑल दिस प्रोसीडिंग्स। तो कहने का मतलब यह है कि जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर ही इतने स्टे मिल रहे हैं तो बैंकरप्सी भी स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तो तब देखेंगे इसके अंदर क्या है, बट इट इज एप्लीकेबल, इट इज अ लॉ एट प्रेजेंट। But we are not criticizing as such. No case has come to us by now. What these reasons? सर बैंकरप्सी के केस से पहले जैसे आप क्रिप के केसेस करते हैं, क्रिप के केस में पहले आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो, जब तक सेक्शन 14 का ऑर्डर नहीं होगा लिक्विडेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? 14 का ऑर्डर के बाद 180 डेज 90 डेज जो भी है 330 डेज और टाइम लेना जब तक। तो अभी जो है, अभी वो जो हमारा ये इसके अंदर जो है क्या कहते हैं 180 डेज वाला पीरियड है, वही अभी खत्म नहीं हुआ। तो जब तक वो किसी भी केस का खत्म नहीं होगा तो बैंकरप्सी स्टार्ट नहीं होगी। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि ऐसा नहीं है कि it can't be started. It has not started because अभी उसका टाइम ही नहीं आया। रीपेमेंट प्लान के ऊपर जो है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का भी मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया, वेयर बाय एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न कि इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के ऊपर भी कोई कोर्ट ने ऑर्डर करा हो आज की डेट तक। Vinay, personal guarantor is covered under which regulation? है जी, Vinay Kant asks, personal guarantors are covered under which regulations? इनके देखिए पर्सनल गारंटर के भी और बैंक ट्रस्टी के भी दो रेगुलेशंस हैं। एक रूल्स है और एक रेगुलेशन है। रूल्स के अंदर आप एप्लीकेशन कैसे फाइल करोगे प्रिस्क्राइब्ड है, और आईबीबीआई का रेगुलेशन है, आईबीबीआई का रेगुलेशन है, नाम उसका यही है रेगुलेशन फॉर पर्सनल गारंटर्स। मैंने अपनी स्लाइड के अंदर शुरू में बताया भी था, तो इफ यू वांट टू नो एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ जी आपको। इसका नाम है जी रूल है बैंकरप्सी प्रोसेस, और एक और जो रेगुलेशन है वो है पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। आईबीबीआई का रेगुलेशन है पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर, वो भी स्पेसिफाई हुआ है। सिमिलरली बैंकरप्सी का भी यही है, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर की तरह से होगा। मैंने स्लाइड के अंदर एग्जैक्ट बताया था। तो यही क्वेश्चन है। एंड शुक्रिया दोस्तों जिन्होंने हमारे साथ कनेक्ट करा सोशल मीडिया पे, बियॉन्ड लॉ सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और जूम मीटिंग पे। और आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ देते रहेंगे और अच्छे स्पीकर्स हमारे साथ आते रहेंगे। और कल का सेशन होगा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट वाकफ एक्ट 1995 एंड अमेंडमेंट्स, दैट इज बाय जस्टिस Saibullah Munshi, a former judge from Calcutta High Court. Do stay connected with us tomorrow at 6 p.m. And on behalf of the team of Beyond Law CLC, we thank Mr. Manoj Anand, who has shared his insights in a way which was very subtle and which could be understood by one and all. His slides gave the insights in a short and a crisp manner, which hammers the point in the right way. Everyone stay connected with us. Thank you.